Hi everyone, good evening. So this is Hari, and with me we had two associates, Indu Didi from Indore and Nancy from Panipat. So we are going to discuss about one of the most beautiful topic which we always talk about is happiness. And here we are going to discuss how we can unlock the happiness. So you might have heard this word RCA. RCA means root cause analysis. So we are going to do RCA, not root canal treatment, but RCA of unhappiness, potential solutions, and being sponsored or maybe being suggested, supported by the Cosmic Cloud team. So we have my mentor, Mr. Pandit Siram Shrimacharya, so who has written a book, Key Reasons and Solutions of Dissatisfaction. And that is the main content source for this webinar and presentation. So let's move ahead. This is also being sponsored by the Power of Life. Okay, so this is the content. We are going to talk about root cause. We see a circle of unhappiness, 4 threads to happiness, dimensions. Where is happiness? Do we need to chase this? The secret of happiness, techniques to invite happiness, path of happiness, and 21 days Devdut challenge. So here we go. Root cause analysis of unhappiness. If you talk about, every person wants happiness. It is, imagination or our belief. But what is the reality? If you do the check of reality, almost every second person or every person is visible unhappy. There could be riches, there could be children's, old age, young age. Everybody is being observed unhappy because of X, Y. Somebody is more happy, more unhappy, somebody is lesser unhappy, but sadness and unhappiness are almost there everywhere. So the question arises, what is the root cause? What is the essence of happiness and the faulty direction? So these are the root causes basically. And we don't know what is happiness. If we don't know what is happiness, direction being taken over, the path being selected is faulty, then we will never reach to the happiness. And the next grade talks about everyone wants happiness. In the mid of unhappiness, what happens? People get small happiness, hopeful for the life. If you ask, do you make any efforts? Everybody will talk about, yes, we do make a lot of effort for happiness, but many a times happiness is far away from us. So overall, happiness is essential. It is a nectar which is useful for social, mental health and well-being. Let's talk about more on this. So Indu Didi, I'll invite you to talk about this, your ideas, your thoughts. There is a girl, very depressed. Yes, भैया. Yeah. So दीदी आप इसके बारे में बात कर सकते हैं कि ये लड़की कौन से विशेष सर्कल से जा रही है, और इसके बारे में ये जो विशेष सर्कल दिखा रहे हैं ना, इसमें कुछ थॉट्स बताए हुए हैं. तो ये थॉट्स आप पढ़ लीजिए और आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, इफ पॉसिबल फॉर यू. अदरवाइज नैन्सी आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके लिए आप अवेलेबल और पॉसिबल है तो. So basically जो मूड अपसेट होता है हमारा, am I audible भैया? Yeah, you are perfectly audible. आप बिल्कुल पा रहे हैं. तो बेसिकली जो हमारा मूड अपसेट होता है, या कभी भी मूड तभी अपसेट होता है कि जब हमारी जो डिमांड होती है और एक्सपेक्टेशंस होती है और सप्लाई जो होता है उसके सामने, वो दोनों में अनमैच हो, है ना? मतलब जैसे इन एनी फील्ड, मतलब वो कोई भी लेवल पे हो सकता है, फिजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, इमोशनल लेवल. ये 3 लेवल, ये तीनों लेवल में कहीं पे भी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है या डिमांड है और उसके सामने जो सप्लाई है, अगर वो मिसमैच होगा तो हमको मूड हमारा अपसेट होगा. हमने कोई काम करने की सोची और वो नहीं हो रहा है
या उस टाइम पे नहीं खत्म हो रहा है, तो वी विल हैव अपसेट इन मूड। जब हमारा मूड ठीक नहीं होगा तो ऑब्वियसली दूसरों के साथ हमारी जो रिलेशनशिप होगी, जो हमारा एक इंटरेक्शन होगा वो अफेक्ट होगा। उसकी वजह से देन अगेन हमारा जो काम का प्रोडक्शन है उसमें कमी आती है। काम का प्रोडक्शन में कोई कमी आती जाएगी, वैसे वैसे वापस से रिजल्ट खराब होगा। देन अगेन एक्सपेक्टेशन नहीं मिलेगी। सो ये विशेष साइकिल में ये लड़की फंसी हुई इस तरह से प्रतीत होता है। सो अगर देखा जाए तो ये लड़की ही नहीं, हम सभी लोग इस तरीके के विशेष सर्कल्स में फंसे हुए हैं। कुछ ना कुछ छोटी छोटी हम लोग गलतियां कर रहे हैं और वो गलतियों के कारण ही हम लोग परेशान हैं अपनी जिंदगी में। तो व्हाट इज द वे ऑफ ब्रेकिंग द विशेष सर्कल, वो हम लोग आगे बात करेंगे। दीज आर द 4 थ्रेड्स जिनके कारण मुझे लगता है, हमें लगता है कि हैप्पीनेस खतरे में पड़ जाती है। नैन्सी, could you explain if possible for you? We have Monica also with us. So I think not possible for Nancy. So Monica जी, क्या आपके लिए संभव है ये ग्रिड को एक्सप्लेन करना? 4 threads of unhappiness, 4 threads of happiness, unhappiness। 4 threads of happiness। या आप अपने आप को अनम्यूट करें मोनिका जी। भैया 4 threads of happiness है या अनहैप्पीनेस? ये 4 threads of happiness है। नेगेटिव पॉजिटिव का दुश्मन होगा ना, थ्रेड्स इज ए नेगेटिव वर्ड। ओके। हैप्पीनेस के 4 दुश्मन हैं। ईगो तो भैया समझ में आता है कि जब हम ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं तब हमें हमेशा डर रहता है कहीं हमारे ईगो को ठेस ना पहुंचे। तो वी बिकम वेरी प्रोटेक्टिव फॉर आवरसेल्फ, डिफेंसिव फॉर आवरसेल्फ। स्कैर्सिटी में जैसे मुझे 4 रोटी की भूख है लेकिन 2 ही रोटी मिली तो मैं दुखी हो जाऊंगा कि अरे बाबा 2 रोटी कम मिली, मुझे खाली पेट सोना पड़ा। करेक्ट। स्कैर्सिटी इज आल्सो ए थ्रेट फॉर हैप्पीनेस। तीसरा है नॉन कोऑपरेशन। I need support from my team। मैं एक मैनेजर हूं, मेरे पास 4 एसोसिएट हैं, बट चारों एसोसिएट मेरी लैग पुलिंग करते हैं, मेरी बातों को सुनते नहीं है, समझते नहीं है। मैं बहुत परेशान हूं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं। सो दिस इज अ थ्रेट फॉर हैप्पीनेस। आपके जो टीम मेंबर है ना, आपके सहयोगी हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, वो सब आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे तो आदमी बहुत खुश हो जाता है। और चौथी चीज एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कौन एक्सप्लेन करेगा? मोनिका जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे क्या? आई थिंक उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो इंदु दीदी आप ही एक्सप्लेन करिए, इग्नोरेंस कैसे हैप्पीनेस के लिए नुकसानदायक है? इग्नोरेंस इन व्हाट टर्म्स? इग्नोरेंस इन एनी टर्म ना। अब मैं बताता हूँ आपको, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है और मेरे घर में पानी नहीं है, करेक्ट? और मुझे पता ही नहीं है कि पानी पड़ोस में मिल सकता है मुझे, तो मैं दुखी रहूंगा और प्यास से मर जाऊंगा। ओके, करेक्ट ना? So anything if you are ignored, not having any knowledge, और मे भी सही नॉलेज नहीं है, तो आप हमेशा स्केर्सिटी के चक्कर में फंस जाओगे, या फिर यू विल बी स्टक इन समवेयर एंड आप रियल एसेंस तक पहुंच नहीं पाओगे। जैसे कि एक बात बताऊं आपको, किसी बंदे की 2 बैक आई, राइट? इंजीनियरिंग में 2 बैक आई, 2 बैक आने के बाद में उसको इतना सदमा लगा कि अब तो मैं इंजीनियरिंग पास ही नहीं कर पाऊंगा, वो सुसाइड कर लेता है। वहीं दूसरी जगह दूसरे बंदे की भी 2 बैक आई, बट उसको ये पता है कि 2 बैक को मैं अगले सेमेस्टर में निकाल सकता हूँ। देयर इज कि मैं फिर से पढ़ाई करूंगा, अगले सेमेस्टर में फिर एग्जाम दूंगा तो बैक निकल जाएगी। अगर वो उसको पता है बंदे को, और ये पता है कि ये मुश्किल इम्पॉसिबल नहीं है, तो वो इस नॉलेज के कारण, इस खड्डे में फंसे हुए होने के भी कारण बाहर निकल जाएगा और अपनी लाइफ बचा लेगा। लेकिन पहले वाले को पता नहीं था, पहले वाले को लगा मेरा कैरियर स्पॉइल हो गया। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इग्नोरेंस। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इग्नोरेंस। करेक्ट? बड़ा दुश्मन है इग्नोरेंस। उसको भी कह सकते हैं कि हम सामने वाले के बारे में कंफ्यूजन हो जाता है ना, हम और हमने सोचा कि इसने ऐसा सोचा क्यों होगा, वैसा क्यों सोचा होगा, और हम उसी चक्कर में पढ़ के दुखी हो जाए, परेशान।
मिसबिलीफ, मिसकंसेप्शन जो होते हैं वो भी इग्नोरेंस की कैटेगरी में है। ये 4 बड़े बड़े थ्रेट्स हैं। अगर चारों पे काबू पा लिया जाए ना, तो हम 70, मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा हम प्रॉब्लम जीत लेंगे। हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आते हैं। Let's explain the dimensions of happiness. इनको दीदी कुछ समझ में आया इस स्लाइड में? हेलो, हाँ भैया। ये स्लाइड बेसिकली क्या बता रही है कि जिन लोगों को ये पैसा हो तो खुशी मिलेगी, तो आप पैसे वाले लोग देख लो, हजारों लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए है लेकिन वो बहुत दुखी है। मतलब पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। दूसरी चीज है इंटेलेक्ट। अगर हम ये सोच रहे हैं कि बुद्धिमान लोग खुश रहेंगे और बुद्धिमान मैं किया तो मैं हमेशा हैप्पी रहूंगा, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लिटरेट लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो अनहैप्पी है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो सुसाइड करते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो डिप्रेशन में, करेक्ट? सारे पीएचडी डॉक्टरेट लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी है। तीसरा मसल पावर, जो जिम में सबसे ज्यादा अच्छी बॉडी बना के बैठे हैं, शायद हमें लगता है कि वो बहुत खुश होंगे, वो भी सही नहीं है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन भी मेंटली अनहैप्पी रह सकता है और रहता भी है बहुत सारे केसेस। तो ये तीनों ही जो डेफिनेशन है हैप्पीनेस की, ये सारी मिथ है, इट्स ट्रुथ। सो बात ये है, ये छोटा सा बच्चा दिख रहा है ना आपको, ये अपनी परछाई के पीछे भाग रहा है, करेक्ट? परछाई के पीछे भाग के कभी आप परछाई पकड़ पाओगे? नहीं। क्या करना पड़ेगा? हमें टर्न करना पड़ेगा और अपनी जिंदगी की जो मंजिल है, गोल है, उसकी तरफ भागना पड़ेगा। परछाई हमारी तरफ अपने आप भागे, करेक्ट? ये फिर अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट डू वी नीड टू चेंज हैप्पीनेस। बहुत छोटी सी मुझे इंटरनेट से कविता मिली थी। मर्ग तृष्णा में फंसा मर्ग है, व्याकुल मन है प्यास से, मनुस्थल में ढूंढ रहा दौड़ दौड़ के नीर को, दूर से दिखता पानी उसको, पास गए तो प्यासे रह गए, तृष्णा मन की बुझ नहीं पाती, व्याकुल मर्ग बस ढूंढे नीर को। यानी हम जीवन में सोचते हैं ना कि थोड़ा पैसा कमा ले तो हैप्पीनेस मिलेगी, कोई बंदा हमारा दोस्त बन जाए तो हैप्पीनेस मिलेगी, कोई जॉब अच्छी लग जाए तो हैप्पीनेस मिलेगी। ये सब मृत तृष्णा है। हैप्पीनेस कहाँ है? वो अब दूसरी वाली पिक्चर में। कस्तूरी मृग और मनुष्य में एक समानता है कि वो अपनी ही खुशबू के पीछे भागता है और हम अपनी ही खुशी के दोनों को ही ये पता नहीं चलता कि असली चीज हुई है, करेक्ट? सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस ये है कि द रियल फैक्ट इज दैट दोज हु रन बिहाइंड हैप्पीनेस टेरिबली गॉट डिसअपॉइंटेड। हमें कुछ नहीं करना, जो भी करते हैं उसमें मन लगा के काम करें। फ्रीडम ऑफ सफरिंग, यानी अपने आप को कष्ट से मुक्त करें। सो जो कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, उसमें हैप्पीनेस फील करना अपने को। Easiest way to invite happiness is to least eager, anxious and worried. चिंता छोड़ दे, eagerness छोड़ दे और worriness छोड़ दे। It's talking about कि हमें मदरलैंड, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, सोसाइटी जो है, सबकी चिंता करने की जगह पे हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे करने लायक कार्य है वो करना है, जो हमारे हाथ में, बस वो करना है। चिंता से क्योंकि कुछ नहीं होगा। There has to be no worry about anything. What is possible or feasible that we need to be done and that's it. रात को अपनी DOR करो, अकाउंट क्लोज करो और आराम से सो जाओ। जो होगा देखी जाएगी। आएगा भूकंप आने दो, आएगा तूफान आने दो, वो भी देख लिया जाएगा। लेकिन हमारे हाथ में जो है, जो पॉसिबल है, बस हमें वो करना है। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं हैप्पीनेस को इनवाइट करने के। पहला है आत्मवत सर्वभूते से, जो मुझे मेरे लिए पसंद नहीं वो मुझे दूसरे के साथ नहीं करना। सेकंड प्रिंसिपल है डोंट सी इम्परफेक्शन, दूसरों में कमियां मत देखो, केवल अपॉर्चुनिटीज और स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट देखो। तीसरी चीज है गोल ऑफ कंप्लीशन। ये दीदी एक छोटा बच्चा दिख रहा है आपको ना राइट में,
हेलो। इसकी मॉम ने क्या किया, एक आधा लड्डू दिया इसको तो रोने लग गया वो। फिर उन्होंने क्या किया, उस आधे लड्डू को ही रीशेप किया, पूरा लड्डू बना दिया और फिर बच्चे को दिया तो बच्चा खुश होकर खाने लग गया। सोचो चाइल्ड साइकोलॉजी भी पूर्णता को पूर्णमिदम पूर्णता को पसंद करती है, वो कंप्लीशन को चाइल्ड साइकोलॉजी भी पसंद करती है। उसी तरीके से हमारे अंदर भी एक चाइल्ड है जो जब भी हम कोई चीज कंप्लीटली करते हैं, अच्छे से करते हैं, परफेक्शन के साथ करते हैं तो बहुत खुश होता है, वो बहुत खुश होती है। सो दैट्स इट, जो भी करें, छोटा करें बड़ा करें, बट हमें कंप्लीशन के साथ करना है, एंड टू एंड करना है, आधा करके छोड़ नहीं देना। सो ये 10 प्रिंसिपल्स है पाथ ऑफ हैप्पीनेस के लिए। सेटिस्फेक्शन जो है उसमें खुश रहो, हार्ट को प्योर करो, माइंड रिलैक्स, फेथ ऑन सेल्फ, सी फॉर गुड। हम लोग बीच में हैं, मतलब हमसे आगे भी कुछ लोग हैं, हमसे पीछे भी कुछ है। लर्न फास्ट, लिव इन प्रेजेंट एंड होप बेस्ट फॉर द फ्यूचर। ये सेकंड वाली मिड वाली ग्रेड है। और 10वां ये है सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो मैं अप्लाई करता हूँ। जो भी काम करो जिंदगी में ना, अपनी सोल का अप्रूवल ले लो। सोल मतलब आपकी जो अंतरात्मा है ना, उसको, वो आपकी मैनेजर है, वो लीडर है। अगर उसने अप्रूव कर दिया किसी चीज को और आपने किया, कभी आपके जिंदगी में दुख आ ही नहीं सकता है। फिर चाहे बड़ा से बड़ा तूफान आ जाए तो उसमें भी आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। So this is the last slide. Let's root for each other and watch each other grow. Thanks for patience listening. 21 days देवदूत चैलेंज, ये मोबाइल नंबर है जिसमें व्हाट्सएप के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। और 21 डेज देवदूत चैलेंज क्या है जो हम कल से शुरू कर रहे हैं, इस बेसिकली सूर्योदय के पहले हमें जगना है और गुड मॉर्निंग वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। और जो लोग 21 दिन में सबसे आगे रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो लोग इसके विनर घोषित किए जाएंगे 21 डेज देवदूत चैलेंज के। एंड जो विनर रहेंगे उन्हें ये वाली प्लानर है, टर्न दोज ड्रीम इनटू प्लान, ये हम लोग गिफ्ट करेंगे। ओके भैया। ओके, सो थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा ये प्रेजेंटेशन? आप 1 मिनट में चाहे तो अपना व्यूज शेयर कर सकते हैं। भैया जैसे हैप्पीनेस तो बहुत बड़ा टॉपिक है, जस्ट स्लाइड्स में उसको सम अप करना मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है। मतलब हैप्पीनेस इज व्हाट कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिले देन वी आर हैप्पी, हम जो चाहते वो नहीं मिले देन वी आर अनहैप्पी। तो अब हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा कि हम जो चाहते हैं वो रैशनल है या इरैशनल है। लाइक अभी फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी है फॉर एग्जांपल कि 50,000 पर मंथ में अर्न करने, और मेरी डिजायर है कि मुझे BMW चाहिए, है ना। सो जो मेरी डिजायर है इट इज इरैशनल, इट इज नॉट मैचिंग विथ माय current financial position. Correct. But if I work hard, if I find the way to earn more, then someday I can have BMW. So basically need और desire, पहले तो इन दोनों के बीच में अपने को differentiate करना और जानना बहुत जरूरी है कि what is need and what is desire. Exactly. क्योंकि desire तो बहुत सारी हो सकती है, needs few होती है। तो जो भी अपने जहां भी अपने को मिसमैच लग रहा है, पहले तो पहचानना पड़ता है कि हम अनहैप्पी है। फर्स्ट वी शुड हैव दैट इनसाइड कि हम अनहैप्पी है। फिर हमें देखना है कि क्यों अनहैप्पी है, क्या गड़बड़ हुई है। ओके ये गड़बड़ है, अब उसको देखना है कि ये जो गड़बड़ है उसके लिए जो हमारा रिस्पॉन्स है वो रैशनल है या इरैशनल है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुझे BMW चाहिए, तो दैट इज इरैशनल एट प्रेजेंट, है ना। But if I work hard, if I work hard for the same and earn that much money, I can have BMW. But then again मुझे फिर से उस चीज को लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि मेरे पास BMW की जगह दूसरी कोई कार भी चल सकती है, i10 भी चल सकती है या दूसरी कार भी चल सकती है। अल्टीमेटली गाड़ी का काम तो ट्रांसपोर्टेशन का ही है ना। एक्चुअली दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो थर्ड वाला प्रिंसिपल है ना, लड्डू बड़ा हो या छोटा हो, वो पूर्ण होना चाहिए, कार्य पूरा होना चाहिए, एंड टू एंड होना चाहिए। लड्डू देखो, बड़ा लड्डू मतलब BMW, छोटा लड्डू मतलब हमारी मारुति अल्टो नेक्सन वगैरह जो भी 5 लाख 10 लाख 20 लाख की, राइट। सो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो अच्छे से करो। जैसे छोटी गाड़ी है बट सेफ हो, अच्छे से चलाना है उसको, और हैप्पीनेस फील करनी है, एंजॉय करना है, तो आप वो छोटे खुश हो जाओगे जैसे बालक खुश हो गया था। एक्चुअली भैया इसमें छोटा बड़ा भी है, वो सब मार्केटिंग वालों ने कर रखा है ना। BMW ने अपनी एक ब्रांड बना रखी है, मारुति की अपनी एक ब्रांड है,
उसकी ब्रांड के हिसाब से उसका पैसे अलग लगते। पर्पज इस पूरा होना ब्रांड के चाहिए। अपने पर्पज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन पर्पज है, कंफर्ट पर्पज है, हाँ बस यही चीज है। होना चाहिए। तो ये इंसाइट आना बहुत जरूरी है कि हम जो चीज कर रहे हैं वो रैशनल है और जो करना जरूरी है वो हमें करना चाहिए। जैसे आज अगर मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, फीस देने को पैसे नहीं है, देन इट इज अ नीड, फिर मुझे मेहनत करनी चाहिए। पर अगर मुझे BMW खरीदनी है और उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे एक बार सोचना चाहिए कि इज इट नेसेसरी और नॉट। ओके ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे भैया बहुत बात बेसिक्स होती थी। बेसिक्स से पॉइंट्स हमने कैप्चर किए हैं एंड ये जो जी जी पर्सनल थिंकिंग वाला पॉइंट बोला ना, दैट्स रियली वेरी वेरी गुड। इन द नेक्स्ट स्लाइड हम लोग इसको अपग्रेड कर देंगे, करेक्ट। सर में एक और पार्टिसिपेंट है बट वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। मोनिका जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? हाँ जी, अ, हाँ जी, बोलिए सर। हाँ जी हाँ जी। सो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दीजिए एंड यू आर ऑन द रिकॉर्ड। एंड आप बताइए कि कैसा लगा ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको? बढ़िया लगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इंदौर से बोल रही हूँ। ये इंदू ने ही मुझे ज्वाइन करवाया था, मोनिका चौहान। आई एम टीचर। एक्चुअली आप ग्रुप में नहीं थे इसलिए मुझे पता नहीं था। राइट, हाँ हाँ। ओके। कैसा रहा एक्सपीरियंस नहीं, आपको? ग्रुप कैसा? में हूँ ना मैं, कॉस्मिक वाले में। ओके ओके। हेलो, हाँ जी, ग्रुप में हूँ मैं। तो आप एक्टिव नहीं है। कभी रहता है गुड मॉर्निंग का मैसेज, बट इतनी एक्टिव नहीं हूँ मैं। अब जब आप एक्टिव हो जाएंगे तो आपके नाम याद हो जाएंगे हम लोगों को, जैसे इंदु दीदी एक्टिव है में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ना, विजिबिलिटी बनाने का यही तरीका है, बी एक्टिव एवरीवेयर। जहां भी जी। होगे ना वहां आपकी विजिबिलिटी बन जाएगी लाइफ में। हेल्थ के सेगमेंट में एक्टिव रह जाएंगे तो हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, बॉडी बहुत बैलेंस बन जाएगी। और वेलनेस के एरिया में एक्टिव हो जाएंगे तो माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सोल के एरिया में एक्टिव हो हाँ। जाएंगे तो सोल की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। सोल की स्ट्रेंथ स्ट्रांग रहती है जो आज हमें पहले से ही इंट्यूशन हो जाती है क्या होने वाला है। लेकिन ये करना सोल ये नहीं तक करना। पहुंचने, नहीं, सोल तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा वे कौन सा होता है? सोल मेडिटेशन। पहुंचने का सबसे बढ़िया वे होता है बांसुरी बन जाना। अच्छा, बांसुरी वो मतलब समझे कैसे? आप? बांसुरी बन जाना मतलब नहीं। अपने आप को अंदर से खाली कर दो, अपना ईगो हटा दो, कृष्ण के साथ एसोसिएट हो जाओ। कृष्णा यानी जो भी ऑलमाइटी है एंड उनको जैसे कठपुतली बन गए ना, तो कठपुतली क्या करती है, धागे चलाने वाले के इशारों पर और अपना ईगो छोड़ देती है। वो कठपुतली को ऐसे मुड़े तो भाई कठपुतली ऐसे मुड़ती है, वो बोलती है ऐसे मुड़ो तो कठपुतली वैसे मुड़ती है। अपना जो धागे जिसके हाथ में दिए ना हमने, उसके इशारों पे जब हम चलने लग जाए और अपना ईगो जीरो कर दे, सो देन यू विल रियलाइज कि आपकी सोल आप देख पा रहे हो। सोल आप सोल विल बिकम देन कृष्णा एंड आप बांसुरी बन जाओगे। और जो स्वर निकलेंगे उससे दुनिया मधुर स्वर से नृत्य करने लगेगी। मतलब आपकी लाइफ के जो गोल्स हैं वो पूरे होने लगेंगे। तो इसको अचीव करने के लिए तो काफी मेहनत करना पड़ती होगी ना? ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सरेंडर करना है अपने आप को उस ऑलमाइटी के हाथों में और प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाना है। ईगो को छोड़ना है। ईगो ईगो तो जितना वैसे रहेगा अभी ना, भी। ईगो मतलब ईगो इन गॉड आउट। जब तक ईगो है ईश्वर नहीं है। जब तक मैं था हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। अच्छा। क्या तो नाम ही हरि है। ओके। ओके, और कोई सवाल? नहीं, और तो कुछ नहीं है, यही पूछना था मुझे। तो मोनिका दीदी, डेली हम लोग, आज डीओआर हमने स्किप किया था, बट डेली 9:30 to 9:45 हम लोग डीओआर कर रहे हैं, डेली ऑपरेशन रिव्यू, जिसमें हम लोग हैं। बट हमारे साथ हिमालय के साथ ऋषि भी सूक्ष्म रूप में रहते हैं, मतलब कॉस्मिक क्लाउड जिसको हम लोग कहते हैं ना। कॉस्मिक क्लाउड इज नथिंग बट सप्त ऋषियों का मंडल है और जो हिमालय की ऊर्जा है ना वो है। तो जब हम तो कनेक्ट, अभी तो और लोग एडेड ही नहीं है, केवल अपन 3 पीपल ही है। 3 पीपल नहीं है, हम लोग 10 लोग हैं। हो गए क्या 10? अभी तो मैंने 4 ही दिख रहे हैं मुझे तो इसमें। अच्छा अच्छा,
देखो 4 है एक हमारे साथ। 7 लोग वो हैं जो हिमालय के ना कॉस्मिक क्लाउड के ऋषि लोग हैं, वो इनविजिबल फॉर्म में आते हैं, वो इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है उनके पास में, टेलीपैथी वाला इंटरनेट है। ओके ओके। वो 7th डायमेंशन है, डिफरेंट डायमेंशन है, इस दुनिया से अलग है। वो कुछ भी जा सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। दे आर द एनर्जी सोल्स, ऋषि कहते हैं ओके एनर्जी सोल है। और वो जब जी। भी आप कुछ अच्छा सोचते हो ना, आपको मोटिवेट करने के लिए आपके पास आ जाएंगे। तो ये जब हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा सब करेंगे तब हमको फील होने लगेगा। वो आपको उनकी एनर्जी ना महसूस होने लगेगी। जैसे मुझे आज महसूस होने लगी जब से मैंने डी और किया ना, तो मुझे लगना अंदर से आवाज आती है कि नहीं हरी ये करो, नहीं हरी वो करो, ये करो, पहले करो। पहले मैं प्रोक्रास्टिनेट करता था, बट अब अंदर से आवाज आती है कि ये चीज पहले करनी है, बाकी चीजें छोड़ देनी। प्रोक्रास्टिनेशन मेरा लगभग खत्म हो गया अभी। अच्छा, मतलब तो आपका जो रूटीन, ऑडिट रिपोर्ट एक बनानी चाहिए। आपका जो रूटीन है वो क्या रहता है, मतलब वेकअप से लेकर स्लीपिंग तक? रूटीन मेरा अभी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, बट है कि जैसे ही ये कॉल क्लोज होती है ना, तो उसके बाद में 5-10 पाँव धो के एंड देन बेड पे सो जाना, एंड सुबह 4-4:15 बजे उठना, मेडिटेशन करना 40 मिनट का, एंड देन उसके बाद मॉर्निंग में कुछ एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटी करना, एंड देन उसके बाद दिन में ऑफिस है 9 बजे से 6 बजे तक, एंड शाम को आना। कभी मेरी सुसाइड प्रिवेंशन की कॉल रहती है 6 से 7 वाली, वो कॉल अटेंड करना, शाम को खाना खाना 8 बजे तक, एंड देन उसके बाद में 9:30 बजे डीओआर करना और फिर सो जाना घर पे बात करके। अभी स्टार्टिंग में जैसे अपन मेडिटेशन करते हैं तो एकदम से ध्यान में मन नहीं जा पाता है इधर उधर, तो उसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट तो मैं समझ गया। आपने कभी बहुत पुराना बर्तन इसमें ना कुछ लग रहा हो पहले से ना, और बर्तन जंग वो लग गई हो, क्या कहते हैं, जैसे दूध जल जाता है, और या फिर हमने धोया नहीं बर्तन और पड़ा हुआ है बहुत पुराना, और फिर हम धो रहे हैं, धोया कभी? हाँ, नहीं तो काफी टाइम बाद तो निकलता है वो तो। काफी पुराना बर्तन हो जो आपने कभी रखा हुआ तो और बहुत ही गंदा सा हो गया, वो धोने का अनुभव है आपको? क्योंकि धोने का तो नहीं है, लेकिन हाँ काफी टाइम लगता होगा उसको निकलने में भी। मैं बताता हूँ क्या होता है। जब वो पुरानी डस्ट लगी हुए बर्तन को हम लोग धोते हैं ना, और उसमें ऑयल भी लगी रहती है, चीजें लगी रहती है अगर, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें गर्म पानी डालना पड़ता है। गर्म पानी डालते हैं ना, गर्म पानी या फिर कास्टिक, ये दोनों ही चीजें क्या है, टफ ट्रीटमेंट है। कास्टिक भी उसके ऊपर ऐसे वार करता है, कास्टिक और गर्म पानी भी वार करता है। तो हमारी लाइफ और गर्म पानी क्या है, गर्म पानी है तप, यानी जो आपको अच्छा लगता है उसके विपरीत अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए तप करें। तो जो तप है वो गर्म पानी है। और कास्टिक पता है क्या है? कास्टिक है सही गाइडेंस। तो बर्तन दोनों चीजों से धुल सकते हैं, गर्म पानी यानी तप से भी धुल सकता है, या फिर सही सजेशन हो, सही ग्रुप में जुड़ जाओ, सही गाइडेंस हो, या माहौल को। तो कास्टिक क्या करता है, वो माहौल चेंज कर देता है, जितने भी वो डस्ट पार्टिकल है ना उनको पकड़ के बाहर फेंक देता है। तो हमारे जो कॉस्मिक क्लाउड जो ग्रुप है वो वही है, कास्टिक सोडा जैसा है। ये क्या माहौल बना देता है कि मेरे जैसा को इस जन्म में उम्मीद छोड़ चुका था कि कभी सुबह उठेगा भी 4 लग जाता है। ये वो कास्टिक, ये वही कास्टिक का इफेक्ट है। गर्म ज्यादा यूज नहीं कर पाया, उतना तप नहीं कर पाया, लेकिन कास्टिक ने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। आप समझ पा रहे हो जो मैसेज देना चाहते हैं? ट्राई तो करते हैं, एफर्ट्स करते हैं हम लोग भी, लेकिन जैसे थोड़ी सी 10-15 मिनट भी यदि बैठे, 2 मिनट भी बैठे, तो इधर उधर की आवाज है, ये है वो है, मतलब हर चीज में इरिटेट लगता है ये कि क्या है ये। एकदम से जैसे शांत मन होके जाना चाहिए ना, वैसा मन बहुत इधर उधर जाता है। तो ये कब तक रहता है, मतलब? सही बताता हूँ आपको, 1 साल पहले भी मेडिटेशन सीरीज मैंने ज्वाइन करी थी, तब मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था और मैं 15-20 मिनट बाद ही सो जाता था। ऐसा हो गया कि अगर रात भर भी मैं नहीं सोया, मान लो काम करना पड़ रहा है, 4 बजे उठ के 4 बजे बिना सोए भी अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ ना, तो पूरा 40 मिनट का मेडिटेशन विदाउट स्लीपिंग, विदाउट ड्राउजीनेस, मैं फील कर पाता हूँ एनर्जी विड्रॉ इन माय स्पाइनल कॉर्ड, एंड स्पाइनल कॉर्ड से एनर्जी धीरे 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 हमारे
सहस्त्रनाथ तक जा रही है, वो महसूस हो पाता है। और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं मेरी लाइफ में। जो हैबिट्स है वो बदल रही है। मैं अपने गायत्री की जो रियल मीनिंग है वो ये है कि इंसान को जबरदस्ती गलत से सही रास्ते पे पटक दे, तो वो चीजें धीरे धीरे होने लग गई। गलत रास्ते से सही रास्ते की तरफ बंदा बढ़ने लगा। तो ये कब तक मतलब करना पड़ता है? तो ये मतलब फिर कब तक अपन एकदम पूरी तरह से मेडिटेशन कर पाते हैं अच्छे से? धीरे धीरे जितना आप मेरे ख्याल से मिनिमम 90 दिन तक करोगे ना, 90 दिन के बाद आपके अंदर बदलाव आएंगे। 90 दिन तक अगर एक भी बदलाव नहीं आ रहा है, इट इज ओके। 3 महीने तक तो आपको लगाने पड़ेंगे अपने जीवन में। पुराने वाले पुराना कलश जो भी है, मतलब डस्ट है, उसको निकालने के लिए 3 महीने की मेहनत लगेगी। 90 दिन तो लगेंगे। ये कोई मैजिक छड़ी नहीं है कि रातों रात 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में हो जाएगा। हमें भी कितना टाइम लगा। हमने 13 जनवरी से शुरू किया था, 13 फरवरी, 13 मार्च, 13 अप्रैल, 3 महीने हो गए। अब जाके चीजें सदी है। हर सर कितने टाइम मेडिटेशन करते हैं आप? टाइम 40 मिनट सर। हेलो 40 मिनट्स यमन सर, 40 मिनट्स। अच्छा 40 मिनट्स ना। आप लोग चाहो तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। वी आर लाइव, वी आर रिकॉर्डिंग, तो ये चीजें उसमें आ जाएंगी। आप मोनिका मैम, आप भी चाहो तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। 10 मिनट। एंड इंदु दीदी आप भी कर लीजिए एक बार वीडियो ओपन, राइट। मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा एक। ओके, यस, एक मिनट अभी ले लेता हूँ। यस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। सो आज का सेशन रिकॉर्डिंग किया है ना हरी सर? आज का सेशन पूरा रिकॉर्डेड सेशन है, राइट। हाँ सर, भेज दो ग्रुप में, क्योंकि मैं अटेंड नहीं कर पाया, ट्रिप पे था मैं, लेट हो गया मुझे। नो प्रॉब्लम, यू कैन लिसन दिस। आप अपनी कैब चलाते चलाते चालू कर दीजिएगा। यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, यूट्यूब पे लिस्ट करके डालूंगा, या फिर देख लेंगे कैसे करना है, लिस्ट करके भी डाल दूंगा। ये तो कॉन्फिडेंशियल सेशन नहीं है, यहाँ पे सब पॉजिटिव बातें ही करिए, तो वी कैन डू इट, यूट्यूब पे डाल सकते हैं। हाँ चलेगा चलेगा। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? मोनिका दीदी, यमन भैया? अभी कुछ मतलब सेशन ही अटेंड नहीं है क्या, तो मैं सवाल कुछ नहीं कर सकता। ओके, नो प्रॉब्लम। आप सेशन देखिए, सुनिए, और आप चाहो तो वो कर सकते हो बाकी लोगों को। इट विल हेल्प यू। इसमें बहुत सारे सवालों के आंसर दिए, और इंदु दीदी ने बहुत सारा अच्छा कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू इंदु दीदी, आपने इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट बनाने में हेल्प करी। आधे लड्डू को पूरा लड्डू बनाने में आपने काफी हेल्प करी। Thank you so much. It was wonderful, pleasure meeting you all, and शुभ रात्रि। हमारे जीवन में कॉस्मिक क्लाउड की ऊर्जा आए, हम सभी लोग प्रगति करें, हम सभी लोग प्रसन्न रहे, हमारे जीवन में अनंत प्रसन्नता का स्रोत हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye.